Assalamualaikum. Welcome everybody to Gani Dairy's briefing. Uh, I have with us the director of the company, the executive director, Shoaib Gani Saab. Shoaib Saab has 17 years of experience. He's one of the key architects of this whole idea of Gani Dairy. We also have Ahad Gani, who is the director at the firm. The operations dekhte hain. Ahad Saab, welcome. Tawheed Saab है, the CFO of the company. Again, multi-decade experience. हमारे साथ गनी डेयरीज के कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस हैं. Welcome all the analysts as well. Over to Ahad Saab. Ahad Saab, I'm sharing the screen for your introductory remarks. Shoaib Saab, if you want to add something, you can. Otherwise, we can just start sharing the slides and Ahad, you can take over. Ji, Shoaib Saab. Yukas, please, next slide, please. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to say that this presentation is for information purpose only, and it is not for any sale and purchase of the shares or anything else. Next. Usman, please, next page. Gani Dairies is part. One step back. Gani Dairies Limited is part of is the company of Gani Group, and Gani Dairies is a Pakistan-based corporate dairy enterprise which is engaged in production and sale of fresh raw milk, and it's located in district Kushab. Gani Dairies was founded in October 2020, and the commercial operation started in October 2021. Gani Dairies was first a private limited company, and it was converted to public listed company in July 2025. The farm is located in Rakh Radari, which is in Nurpur Thal, district Kushab, and the operations are spanned over around 2.4 million square feet. The core business of Gani Dairies is production and sale of raw milk, and the main customers of Gani Dairies are Nestle, Interloop, and Fauji Food. Next. I would like to welcome Shoaib Gani Saab, our Chief Operating Officer, to shed a light on the ongoing expansion as well as our future plans. Over to Shoaib Saab. Assalamualaikum everyone. जी तौहीद साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है. I'm currently Chief Operating Officer of Gani Dairies. खाली मैं Chief Operating Officer नहीं हूँ, मेरा ये पैशन भी है Gani Dairies. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चला हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि इसको आगे हम पाकिस्तान का ये नंबर 1 डेयरी फार्म बनाएं. प्री आईपीओ कैपिटल 325 मिलियन था, जो कि पोस्ट आईपीओ कैपिटल 429.2 मिलियन शेयर्स हुआ और रफली 104.2 मिलियन शेयर्स हमने इसके नए शेयर्स इशू किए. नेक्स्ट प्लीज. जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आईपीओ प्रोसीड्स आई और उनसे जो हम एक्सपेंशन और ऑलरेडी हो गई है, मैं आपको थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये ब्रीफ सिनॉप्सिस हमने बनाया है कि 800 काउज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारे प्रोक्योर कर ली हैं, जिसमें 300 काउज एक दफा एक शिपमेंट में आई हैं और 500 काउज एक दफा आई हैं. ये प्रेग्नेंट हीफर्स हैं और हीफर्स हैं. इंशाल्लाह ये
नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में इंशाल्लाह ये मिल्किंग में सारी की सारी आने शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 3 मिल्किंग शेड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और ऑपरेशनल हैं। इनमें अभी तो फिलहाल जो बाहर से हमने इंपोर्ट किए हैं प्रेग्नेंट हीफर्स इनमें रखा हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर में यही जब प्रेग्नेंट हीफर्स ये मिल्किंग काउ में कन्वर्ट हो जाएंगी तो यही शेड उसको कंप्लीटली अकोमोडेट कर सकते हैं। ये हर तरह से इक्विप्ड है। इनमें हमने हेडलॉक्स भी लगाए हैं, फ्री स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, हर चीज इसमें कंप्लीट है अल्लाह के फजल से, जो कि मिल्किंग काउ की कंफर्ट के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमने एक्सपेंशन प्लान में दिया हुआ था कि हम ट्रैक्टर्स खरीदेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 खरीद ली हैं। ये ट्रैक्टर्स किसी भी डेयरी फार्म के ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं कि जितना रॉ मटेरियल होता है ये ट्रैक्टर्स के थ्रू मूवमेंट होती है इसकी, ट्रैक्टर्स उसको यूज करते हैं और उसके बाद ये आके सारे के सारे जो काउज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो बंकर से वेयर हाउस से ट्रैक्टर लेके जाना होता है स्टैटिक टीएमआर के पास, वो भी यही सारे ट्रैक्टर्स काम देते हैं। तो किसी भी डेयरी फार्म के लिए ट्रैक्टर्स का होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा फ्रंट व्हील लोडर भी हम बोलते हैं, जिसको यहाँ पे फ्रंट लोड बकेट लिखा हुआ है, ये भी किसी भी डेयरी फार्म के लिए बहुत जरूरी होता है। ये नॉर्मली कंपैक्शंस के लिए यूज होता है, जो कि हम बीटरूट पल्प में यूज करते हैं, सिट्रस पल्प में यूज करते हैं हम। इसके अलावा बेल साइलेज बंकर्स में यूज करते हैं। इससे कंपैक्शन बहुत अच्छी होती है और इसकी जब कल को वो यूज होता है फीड में जो साइलेज है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑन ग्रोइंग प्रोसेस आइटम्स है मैं उस पर थोड़ा लाइट शेड करना चाहता हूँ कि एक जो शेड है वो इन प्रोसेस है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर ग्रोथ को अकोमोडेट करेगा। जो हमारी मजीद हम ईफर्स लेके आएंगे बाहर से उसको अकोमोडेट करेगा और जो नेचुरल हर्ड एक्सपेंशन होगी उसके लिए वो करेगा। इसके बाद कंपनी इज इन नेगोशिएशन टू प्रोक्योर सैंड स्प्रेडर। सैंड स्प्रेडर जो सैंड होती है जहां पे काउस बैठती हैं उसके लिए यूज होता है, उसकी बेडिंग के लिए। इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन नेचर, जिस तरह ह्यूमंस को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी खुराक मिले, अच्छा माहौल मिले, हर चीज मिले तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सेम गोज विद दीज काउस आल्सो, कि इनको अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिले, बेडिंग अच्छी मिले जहां पे कंफर्टेबली बैठ सकें। जिस तरह हमारे पंजाबी में जुबान में कहते हैं जितनी ज्यादा गाय जुगाली करेगी वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। तो ये सैंड स्प्रेडर उसको सैंड को इक्वल यूनिफॉर्म बिछाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोसेस है सेंट्रल पिवट को ऑलमोस्ट नेगोशिएशन फाइनल हो गई हैं। हम सेंट्रल पिवट अपना इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी जो जमीन है वहां पे हम अपनी जो इन हाउस हमारी कंजम्पशन है उसकी ग्रोथ के लिए सेंटर पिवट आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे। ये इसका फायदा ये होता है कि ये एग्जैक्ट जिस तरह पानी जितना क्रॉप को रिक्वायर होता है आप ऑटोमेटिकली इसमें फीड कर सकते हैं और ये फीडिंग के बाद उस क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी जिसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को कल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम इन हाउस ग्रोथ में अपनी जाएंगे, अपनी इन हाउस क्रॉप को ग्रो करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक ऑर्डर किया है क्या काफ पेस्चराइजर। काफ पेस्चराइजर जो जिस तरह फार्म किसी भी फार्म का फ्यूचर होता है उसके काफ काफ को जितना अच्छा हम नरिशमेंट करेंगे, जितनी अच्छी ग्रोथ होगी वो कल को उतनी अच्छी फ्यूचर काउस बनेंगे और उतना वो मिल्क ज्यादा देंगे और उनकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हमने काफ पेस्चराइजर एक चीज ऑर्डर की है जो कि एग्जैक्ट टेम्परेचर पे उसके अंदर हम फीड कर देंगे, उसके मुताबिक वो दूध गर्म करके डिफरेंट जगह पे ट्रॉली वो सारी जाके मिल्क को दिया करेगी। तो ये काफी क्योंकि हर्ड एक्सपेंशन हमारा जा रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसके लिए। इससे उनका बीमार होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं काफ्स के। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा कंपनी ने एलसीज कुछ खोल दी हैं जो कि इन प्रोसेस हैं। हमने एलसीज खोल दी हैं, इंशाल्लाह हमें रिसेंटली विद इन 2 to 3 months ये सारी चीजें रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह
किसी भी फार्म के लिए उसका क्रक्स होता है मिल्किंग पार्लर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने टॉप कंपनी से दुनिया की बुमेटिक्स से निगोशिएट करके एलसी को लिया और नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह उसकी शिपमेंट हमें स्टार्ट हो जाएगी। ये 2/24 रैपिड एग्जिट एक्सप्रेस वे हमारा पार्लर है, जो कि 48 यूनिट्स का है। 24 एक वन साइड एंड 24 अनदर साइड, जो कि रफली 1700 मिल्किंग काउस को, बिटवीन 1600 एंड 1700 मिल्किंग काउस को वो मिल्क कर लेगा। एक ये एलसी हमने खोल ली है। दूसरी एलसी हमने 300 काउस की ऑस्ट्रेलिया से खोली है, जो कि इंशाल्लाह बाय द अल्लाह सुब्हानहू तआला ये 12 मई को कराची शिप पोर्ट लग रहा है और विद इन 1 वीक इंशाल्लाह हमें हमारे फार्म पे रिसीव हो जाएगी, जिसके बाद हमारी मिल्किंग काउस जिसके बाद हमारे काउस का टारगेट 1100 पे चला जाएगा, जो कि हमने 1250 ओरिजिनली दिया हुआ था। तो वी विल अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ट्रैक 90% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो काउस का हुआ अल्लाह पाक ने उसको हमारे पूरा करवा दिया है। इसके बाद हमने 2 ग्रेन स्टोरेज साइलोज का हमने एलसीज खोल दिए। ग्रेन स्टोरेज साइलोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ग्रेन की स्टोरेज के लिए होता है। एज यू ऑल नो कि जो कमोडिटीज हैं ये सीजन में सस्ती होती हैं और जिस तरह ही आउट ऑफ सीजन जाती है इनमें 30-40% का राइज आ जाता है। तो इन साइलो से हमें क्या होगा, हम सीजन में खरीद लेंगे और इनको हम स्टोर कर लेंगे। इनके 2 बेनिफिट होंगे, एक कॉस्ट बेनिफिट होगा हमें कि सीजन में प्रोक्योर कर लेंगे चीप में, और जब आउट ऑफ सीजन हम यूज करेंगे तो मार्केट में रेट ज्यादा होगा। दूसरा, ये स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी एफिशिएंसी, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज, क्योंकि एरेशन सिस्टम इसमें बहुत अच्छा होता है साइलोज में, तो ये इसको हम स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज करेंगे। और ये जब आउट ऑफ सीजन तब अच्छी कॉर्न नहीं मिलती तो हम ये अपनी पुरानी स्टोरेज वाली यूज कर लेंगे, जिससे हमारी एफिशिएंसी और हमारी मिल्क एवरेज इंशाल्लाह बेहतर होगी। इसके अलावा ये रिसेंटली हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये की है कि हमने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था काफ पेस्चराइजर, लेकिन ये उससे नई टेक्नोलॉजी है, ये काफ फीडर। काफ फीडर को मैं 1 मिनट जरूर इस पे शेड लाइट करना चाहूंगा। ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, यूरोप और यूएस में तो काफी इन थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। 1-2 फॉर्म्स ने और भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें क्या होगा कि जितने काफ्स हैं हम ऑटोमेटिक काफ फीडर में उनकी क्वांटिटी फीड कर देंगे बाय द स्टैंडर्ड ऑफ एज। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के लिए डॉक्टर कहता है कि अगर आपकी 10 केजी का बेबी है तो उसको ने रोज इतनी खुराक खानी, इसी तरह ही जो काफ का वेट और उसका एज होगी उसके मुताबिक उसका फीड कर दिया जाएगा। और जो काफ का टैग होता है, ये मिल्किंग जो काफ फीडर है वो उसको रीड करेगा। जब वो कहेगा, अगर वो पहले दूध पी के चला गया होगा तो उसके लिए उसको दूध नहीं देगा, और अगर उसने पहले नहीं, दिन में 3 दफा उसके जो फीडिंग की होगी उसके मुताबिक देखेगा ये अपने टाइम पे आया है काफ दूध पीने। और जितना दूध होगा उतना, अगर वो एक वक्त में 4 लीटर पीता है और अपने फीडिंग 7 की भी है तो दोबारा आएगा तो 3 लीटर पी सकेगा। और एग्जैक्ट टेम्परेचर के मुताबिक इसमें कोई वेस्टेज नहीं होगी, उसका टेम्परेचर उसको होगा, बीमारी नहीं होगी। और सबसे ज्यादा काफ बीमार होते हैं नमूनिया से, कि नॉर्मल फीडर से पीते हैं, इससे उनको एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा और नमूनिया एयर नहीं उनके अंदर जाएगी, जिससे नमूनिया के केसेस इंशाल्लाह बहुत मिनिमाइज होंगे। और ये इट विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू आवर फार्म। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का इस टाइम ओवरऑल हर्ट साइज है 3596, जिसमें 1241 हम इनको मिल्किंग काउस भी बोलते हैं, मेच्योर काउस भी बोलते हैं, और 193 इज अ मेच्योर ड्राई काउ विच इज इन अ फेज ऑफ काविंग, यानी कि वो महीने 1.5 महीने में काव कर लेगी। वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है, बस वो किसी भी दिन अब वो काव कर लेगी और वो दोबारा मिल्किंग काउ बन जाएगी। इसकी बाइफर्केशन हम ऐसे करते हैं। और 2162 इमेच्योर काउज है, जिसमें काफ इंक्लूड है, जिसमें 800 काउज जो हम ऑस्ट्रेलिया से लेके अभी रिसेंटली आए हैं आईपीओ फंड से, वो इंक्लूड है सारे, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे मिल्किंग हर्ड एवरेज को बढ़ाएंगे, मिल्किंग जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसको बढ़ाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज। Now I will invite Tawheed Akram sir. Okay. Well, moving forward toward the financial numbers, which are equally important. So, first of all, अगर हम प्रोडक्शन को देखते हैं 9 months till March 2026 को हम कंपेयर करते हैं from the last 9 months 2025. So, last year हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम था 9 million liters.
So this year 23% का increase हुआ और 11.15 million liters milk हमने produce किया 9 months में. So this increase is अगर हम industry में benchmark करें is a good achievement. अगर हम revenue की तरफ आए तो last March 2025 के अंदर 9 months के अंदर 1.3 billion का revenue from contracts हमने earn किया. This year हमने 1.6 billion का revenue earn किया, which is also a good number. एक चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ, जो आईपीओ प्रोसीड से काउस आई हैं, उन काउस के जो रेवेन्यू है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ. दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज अ प्योरली रेवेन्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग हर्ड. नेक्स्ट प्लीज. प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा. All right. So briefly, revenue is increased 22.51%. GP increased 34.09%, and net profit year on year increased by 22.25%. These are very impressive, good numbers if I compare it to the other industries. So what are the reasons? Basically, as per my experience, there are three key main drivers due to which we have successfully achieved these numbers. First of all, production volume. प्रोडक्शन वॉल्यूम इज द की. अगर मैं आईपीओ की बात करूं, आईपीओ में हमने फोरकास्ट किया था कि 34 लीटर पर एनिमल पर डे हम अचीव करेंगे, लेकिन राइट नाउ हम 34.14% अचीव कर रहे हैं. ये 9 मंथ्स के रिजल्ट हैं और हमारी प्रोडक्शन ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है. होपफुली इन आवर जून रिजल्ट्स वी आर होपफुल टू अचीव अ मोर बेटर प्रोडक्शन. Moving forward, average milk prices. So these also play a role in this further operational efficiency. This is the main, you can say, area जो कि profitability को impact करता है. इसके ऊपर मजीद बात इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा. नेक्स्ट प्लीज. Okay, here we will compare 9 months result to the prior period. So अगर हम रेवेन्यू की बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. 22.51% इंक्रीज है. ग्रॉस प्रॉफिट 34.09%. तो जीपी मार्जिन हमारा बनता है 16.79%. और साल के स्टार्ट में शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के साथ जो हमने एक फोरकास्ट शेयर किया, फोरकास्ट के अंदर हमने 15.91% जो था हमारा एक फोरकास्ट था, बट वी हैव अचीव्ड अ बेटर जीपी विच इज 16.79%. लास्ट ईयर हमारा जीपी 15.08% था. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, टाइमली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन द फीड कॉस्ट. फॉर एग्जांपल हमारी फीड कॉस्ट लास्ट ईयर जून पे थी 63%. इस साल हमने 800 काउज इंपोर्ट की और ऑब्वियसली फ्रॉम द डे वन cow started eating, their vaccination cost started occurring. But despite this extra cost, we have successfully achieved 68% feed cost to the revenue ratio. So अब इसको अचीव कैसे किया? Our director will also have a word on this. I'll briefly refer. For example, अभी सर ने बात की regarding corn silage bunkers. So हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में प्रोक्योरमेंट करते हैं. राइट नाउ दिस इज द सीजन ऑफ परचेजिंग. हम लोग नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स की सीजन में परचेज कर रहे हैं और इसी फीड को हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूज करेंगे. राइट नाउ जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सीजनल परचेज नहीं करते, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली कम होगी बिकॉज 20-25 रुपीज फॉर एग्जाम्पल अल्फा या साइलेज की प्राइस में फर्क आ जाता है. सो दिस इज अ ह्यूज पर केजी कॉस्ट. अब इसको हम सेव कर लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स. अगर उनको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सकता है. एंड गनी डेयरीज, एज वी प्रॉमिस्ड इन आवर आईपीओ रोड शोज, we are very much working hard to achieve our numbers. But right now, alhamdulillah, we are not only achieving but overachieving the results. So moving forward, administrative expenses 128% से increase हुए हैं. So obviously IPO was a huge project for us.
उससे रिगार्डिंग हमारी मल्टीपल जो रेगुलेटरी फीस है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आईपीओ में डिस्क्लोज्ड हैं, कंसल्टेशन फीस है और लिस्टिंग की फीस है। ड्यू टू दीज कॉस्ट इनडायरेक्ट उसका जो पोर्शन है वो 128% हमारे राइस के वजह बना। अदरवाइज अगर हम अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को देखें, इफ यू ड्रिल डाउन आवर फाइनेंशियल, तो दोज कॉस्ट आर नॉट इंक्रीज with the percent, with the material percentage. Finance cost increase, obviously 294%, स्क्रीन पे एक बड़ा नंबर लग रहा है, बट इसके बिहाइंड एक स्टोरी है। वी हैव प्लान्ड आवर आईपीओ, हमारा जो प्लान था कि हम जन में आईपीओ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, बट ड्यू टू दी लेंथी प्रोसेस, यस दिसंबर, शेख साहब ने करेक्ट किया, दिसंबर का हमारा प्लान था, बट ड्यू टू द लेंथी प्रोसेस ऑफ आईपीओ और ऑब्वियसली रेगुलेटर्स टेक देयर ड्यू टाइम और अप्रूवल्स में प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा टाइम अप्रूवल में लगा और आईपीओ हम फेब में कर पाए। लेकिन जो काउस की प्रोक्योरमेंट है, अगर आप में से कुछ लोग इस फील्ड से हैं, दे प्रीटी न्यू, दे वेल नो के जनवरी से काउस की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होती है, दिस इज अ सीजन। सो हमने जो अकॉर्डिंगली हमने बैंक से कुछ फाइनेंसिंग करवाई और प्रायर कमिटमेंट्स के लिए कुछ वी वर इन द नेगोशिएशन फेज। सो नेगोशिएशन के अंदर एडवांसेस भी देने होते हैं, कमिटमेंट्स के लिए कुछ चीज़ों को हमें लेके चलना होता है। दैट इज वाई टेम्पररी फाइनेंस कॉस्ट इनकर हुई, लेकिन दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म और अ फोर्सिबल फ्यूचर। कमिंग क्वार्टर में ये कॉस्ट आपको नजर नहीं आएगी। अदर इनकम साइड 444% आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। बेसिक रीजन इज, एक तो आईपीओ प्रोसीड, ऑब्वियसली हमारी बैंकिंग इनकम है, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया और बाकी जितना पैसा हमने यूज किया रिमेनिंग इज इन्वेस्टेड इन अ प्रोफेशनल मैनर, गेट मैक्सिमम बेनिफिट विच विल अल्टीमेटली बी ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24% इंक्रीज हुआ एंड आफ्टर द टैक्सेशन नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 22.25%। एनपी के ऊपर मैं एक रोशनी डालना चाहूंगा। वी प्रॉमिस्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 10.33% और लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट 10.8% था। कम नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ प्रॉमिस ना करने का एक ही जो बिहाइंड रीजन थी, क्योंकि न्यू काउज ने आ जाना था जो कि आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई थी, but the revenue from new cows will come to our books in next year because they are pregnant heifers. कुछ काउज हैं जो कि 3 months में काविंग करेंगी, कुछ 5 months में, कुछ 6 months में। सो ग्रेजुअली उनकी काविंग होगी और साथ के साथ रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेकिन उनकी कॉस्ट अभी इनकर हो रही है, बट डिस्पाइट दीज एडिशनल कॉस्ट वी आर सक्सेसफुली यू कैन से improving our margins. So right now हमारा NP बनता है 10.75%. So we promised 10.33%, which is also you can say a better NP as if I compare with the forecast. Please next. थैंक यू ताई साहब। आउटलुक के ऊपर बात करने के लिए शुएब साहब। जी पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग बिटवीन 3.7 to 3.9%, जिसमें एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है 14% जीडीपी। और डेयरी सेक्टर को एक चैलेंज, इनफॉर्मल सेक्टर से एक चैलेंज है कि जहाँ पे 85 to 90% अनरेगुलेटेड है, जो कि थोड़ा हमें डिस्टर्ब करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन डिमांड जो है वो सपोर्ट करती है सारी चीज को, इस सेक्टर की ग्रोथ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह वी विल अचीव गुड नंबर्स इन कमिंग फ्यूचर। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के बाद हिसाब से, कि ये जो वॉर हुई है इसने सारी दुनिया की चीजों को, खास तौर पे जो बिजनेसेस कमोडिटी रिलेटेड बिजनेसेस, जैसे हमारा कमोडिटी बिजनेस रिलेटेड है, हमारी कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हुई है, चीजें हुई हैं, फ्रेट कॉस्ट बहुत इंक्रीज हुआ है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। जिसमें डेयरी फार्म एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमने सोलर से मिटिगेट तो किया हुआ है, लेकिन जब लोड शेडिंग होती है तो फिर हमें डीजल जनरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है, लेकिन इन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के हम उसे क्या नाम है सारी इस कॉस्ट को मिटिगेट करके इंशाल्लाह बेहतर प्रॉफिट अचीव करें। प्लीज नेक्स्ट।
जी, जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बताया कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हमारी ग्रोथ क्या है। जिस तरह मैंने बताया 800 प्रेग्नेंट हीपर्स हमारी आ गई हैं और 300 पाइपलाइन है। तो हमने 1250 का टारगेट दिया था, होपफुली हम इसको भी 150 को भी बहुत जल्द प्रोक्योर कर लेंगे। और ये थोड़ी इसकी रीजन क्या हुई डिले होने की, डिले तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो समझता हूँ हम बिफोर टाइम है जो हमने कहा था, क्योंकि हमारा बेसिकली आईपीओ 3 मंथ्स लेट हुआ है, ये 1-2 दिन लेट नहीं हुआ। और उसके बाद हमने इतनी, मतलब आप ये सिर्फ इमेजिन करें कि ये जो एक एक शेड है ये तकरीबन 65,000 स्क्वायर फुट है, रफली +-10% टू बी एग्जैक्ट। तो आप ये सोचेंगे आईपीओ फंड्स हमें रिसीव हुए 15 फरवरी को या शायद उसके भी बाद, और आज हम बैठे हुए हैं 7 मई, अभी 3 महीने भी नहीं हुए, 3 शेड्स कंप्लीट हो गए। काउस का इतना रोबस्ट पीरियड था जिनमें हम ऑस्ट्रेलिया दोनों तीनों डायरेक्टर्स भागे, एक एक जगह भागा, एक एक जगह भागा, ताकि जो हमारी ये चीजें थी हम इसको कंप्लीटली तरीके से कर लें। आप ये देखिए, जो मैं इतने आराम से मैंने बताया, ये सालों का प्रोजेक्ट होता है जिसको हमने 2-3 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह इसको सारे नेगोशिएट किया। क्यों? इससे पहले हमने अपना सारा होमवर्क किया हुआ था, हमने अपने सप्लायर्स शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, जिस तरह ही हमें फंड्स आए ताकि हमने इसको फौरन एग्जीक्यूट कर दिया, एक दिन भी वेस्ट नहीं किया इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने मटेरियल इंफॉर्मेशन भी दी थी कि जिस तरह ही हमारा आईपीओ हुआ 300 काउज हमारी आई, जो कि हमने बैंकिंग फैसिलिटी से या कंपनीज के कैश फ्लो जनरेट करके हमने करके उसको लेके किया, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम सारी चीजों को करें। इसी तरह ही हमारे बंकर्स बन रही हैं, ये सारी चीजें हमारी कर रही हैं। फिर जितनी ज्यादा काउज है इसके लिए हम सारा का सारा एक रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमने इसको आईपीओ का कहा भी था कि अगर हमारे पास एक्सेस फंड आएगा तो हम उसको रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमें ज्यादा बेहतर तरीके से रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कैपेसिटी एनहेंसमेंट कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारी अगले साल सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे आफ्टर अगस्त इंशाल्लाह हमारी मिल्क प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होगी। जितनी ये काउज सब तब मिल्किंग में इंशाल्लाह ये आने लग जाएंगी। और उसे क्या नाम है, हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि ये जो हमारी पॉलिसीज हैं ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज हो जाए, ताकि ये इनफॉर्मल सेक्टर है ये ज्यादा ग्रो ना कर सके, और जिसकी वजह से जो फॉर्मल सेक्टर है जो कुछ सारा टैक्स देता है सब कुछ करता है वो ज्यादा ग्रो कर सके। थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आखिर में मैं अपने सारे लोगों का शुक्र अदा करना करूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे बैंकर्स का, हमारे कस्टमर्स का, हमारे सप्लायर्स का, हमारे एम्प्लॉयज का। और स्पेशली, ये मैंने लिखवाया नहीं, स्पेशली मैं अपने शेयर होल्डर्स का जिन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया। इंशाल्लाह हम उनका ट्रस्ट कभी भी शेक नहीं करेंगे, और जो हमने इंशाल्लाह चीजें की हम इसको पूरा अचीव करने की कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह हमारी दिन रात एफर्ट्स हैं और कि हम इसको 100% इंशाल्लाह इसको अचीव करें। थैंक यू वेरी मच आपका सबका। थैंक यू। नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन। जी क्वेश्चंस आए हैं काफी, उन पर हम करते हैं। फिर ऑब्वियसली पहले थोड़े से चैट वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर जैसे बजाज ने हैंड रेज किया हुआ है, फिर वी कैन आल्सो अलाउ अ फ्यू पीपल टू सो दैट दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट। ये हमजा खान का सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ नजर आ रहा है, व्हाट हैपेंस टू एज्ड काउज, which breed of cows does GDL have, how many of them are local, how many are imported? And there are obviously two more questions, but पहले इसका बता दीजिए गाय किस नस्ल की है, एज का उसका। दे ऑल आर इम्पोर्टेड, कोई भी उसे क्या नाम है इसमें वो नहीं है, लोकल काउ नहीं है, सारी इंपोर्टेड ऑस्ट्रेलियन काउज है। प्योर फ्रीजलैंड होल्स्टीन जो कि हमारे पास पहले थी, एग्जैक्टली हम वही लेके आए हैं इसमें। और आपका है कि कैपिटल गेन अंडर IS 41, ये आई थिंक तोहिद साहब इसको बेहतर। आर देयर प्लान टू फर्दर प्रोसेस द रॉ मिल्क? इस टाइम हमारा रॉ मिल्क को प्रोसेस करने का प्लान नहीं है। इस टाइम हमारा मेन फोकस है कि हमने जो आईपीओ में कमिट किया हुआ है हर्ड एक्सपेंशन हो और उसको हम स्टेबलाइज करें, ताकि कैश फ्लोज हमारे जनरेट हो सके और एक हम स्टेबलाइजेशन फेस में जाएं, और ताकि लोगों को रेवेन्यू आए, ग्रोथ नजर आए सारे हमारे शेयर होल्डर्स को।
क्योंकि ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेल जो है ये जिसे आप कहते हैं सोल्ड ऑलरेडी माल, क्योंकि हमारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंपनीज हमारे पीछे होती हैं कि हमें दें, तो हमारा मेन फोकस है कि अभी हम इसको अपने रॉ मिल पे रहे। Okay. Shan Virani जी, का सवाल है, what is the market share of GDL in the dairy sector? व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ जीडीएल इन द डेयरी सेक्टर? इसको एंगेज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ये कोई भी कंपनी अपनी वो शेयर नहीं करती कि वो कितना ज्यादा कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो आप ओवरऑल पाकिस्तान, क्योंकि ये जो स्टेटिस्टिक्स भी हम लेते हैं, ये ओवरऑल पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स उठाते हैं, वो गालबन 70 बिलियन लीटर है कि 70 मिलियन लीटर है रफली। आई एम सॉरी अगर मुझे इस पे पकड़िएगा नहीं, मुझे मेरे जेन्स में नहीं है इस टाइम। तो गनी डेयरी तो इस टाइम अभी बहुत थोड़ा प्रोड्यूस कर रही है, तो ये तकरीबन 1.7 मिलियन लीटर है। तो ये मार्केट शेयर में बहुत कम है, मतलब यू कांट कंपेयर, इट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर मार्केट, ये बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा जी, मोहम्मद अफजल के सवाल आते हैं कुछ प्रोजेक्शन से रिलेटेड। तो तोहिद साहब आप देख लीजिए कि आपका प्रोजेक्शन है जी FY26 का 600 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 2027 का 1.6 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके ऊपर he thinks it seems optimistic. What's your take? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम ऑन ट्रैक हैं, लास्ट क्वार्टर जा रहा है। इसमें जैसे मैंने बताया हमें चैलेंज जरूर एक आया है, जैसे लोड शेडिंग है, हमारी डीजल कॉस्ट बढ़ी है, चीजें बढ़ी हैं, लेकिन वी आर होपफुल कि हम इसके करीब करीब जरूर हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा जो मैंने फिर बताऊं कि हमारा 3 महीने आईपीओ लेट हुआ, अगर और उसमें अगर आप देखेंगे भी तो हमने लास्ट 2 मंथ्स में जो इंपोर्टेड काउस की हमने काविंग दिखाई भी थी, अगर वो पहले आ जाती तो उनकी इंपोर्टेड काउस की काविंग दिखाई तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता और उससे प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन स्टिल वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि हम इसके करीब करीब जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैंड रेज भी किया हुआ है, वो बात करना भी चाहते हैं। मैं इधर जुहेब को अलाउ कर रहा हूँ। जुहेब, unmuting you so you can ask your question. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Zuhaib. Assalamu alaikum. Yes, you are. Wonderful. First things first, I do want to congratulate the company on its results and wonderful detailed presentation. It's always very appreciated for investors and shareholders and analysts like myself. So I just had a couple questions. So one of them, I just wanted clarity. Sorry, I was having a couple of internet problems here. Did you mention that due to the negotiations with the regulators for the procurement of the cows post IPO, the company had financed these cows with the help of banks, which is why the finance costs had increased so much in this period, or was there another reason? I just wanted some clarity on that. And then I could ask my questions after you answer, or maybe I can ask all my questions first, and then we can answer accordingly, whichever is easier for you. If I understand your question correctly, let me answer it. Yes, we told you कि हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट इस वजह से बढ़ी क्योंकि जो फर्स्ट 300 काउज हमारी आई थी, अभी आईपीओ प्रोसीड्स हमारी नहीं आई हुई थी, प्लस उनका क्योंकि हमें पता था हमारी एनिमल्स आ रहे हैं, तो हमने उसका एंटिसिपेट किया था कि रॉ मटेरियल हमें पहले खरीदना पड़ेगा। इस शॉर्ट टर्म को मिटिगेट करने के लिए हमने बैंक से फैसिलिटी अवेल की, जिसको हमने पे ऑफ कर दिया आईपीओ फंड से, जो कि शॉर्ट टर्म जो कि आपको इंक्रीज आ रहा है ना फाइनेंशियल कॉस्ट में, बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, एक ये वजह थी। प्लस एक रीजन ये थी कि जब तक हमारा आईपीओ नहीं तो हुआ था, उससे पहले क्योंकि हमारा नेचुरल जो हर्ड है वो एक्सपेंशन ग्रो कर रहा था, और हम सारा का सारा जितना भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इक्विटी बेस्ड था। तो रॉ मटेरियल के लिए हमने थोड़ा सा फाइनेंशियल बैंक से लोन लिया था, जिसकी वजह से हमारी इंक्रीज होती, जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोगों को ये फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं मिलेगी, बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। और एक रीजन है जो एलसीज वगैरह खुली, जो एलसीज का खर्चा था वो भी इस फाइनेंशियल कॉस्ट में ऐड हुआ है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट एक्स्ट्रा, ये क्योंकि मेजर एलसीज इस दौरान खुली है हमारी। Perfect. I just wanted clarity on that. And my other question was, and you might have touched base on it as well, but I was having some issues. So in your financials, you had disclosed that there was roughly 400+% in other income. Could you disclose exactly what contributes in your other income portion of your P&L?
Uh, income basically consists of profit from the investments, specifically on the saving accounts. Secondary, we basically receive insurance claims against the animals which die or which complete their life at our farm, and we cull them. This is a normal process. But because our 100% herd is insured from a reputable firm, so we also make money from the insurance claim, and that is part of this business. So these are the basic factors. Other than this, we when the calving happen, so we retain the female calves for our future replacement herd purpose, and the male calves are sold right away on their birth, because we do not spend a penny on them, because this is not currently in our business model. So that income also comes under the other income portion. Thank you. Yeah, perfect. So just a follow-up question on that. So basically, other income does play a major part in your overall earnings for a specific period, correct? Just to have that right. Please come again. So let me rephrase that. So basically, for the company's overall earnings for a specific period, other income does play quite a big role in the total overall earnings for the company, correct? This period, yes. In this period, you are right. But if you see our prior year results, other income is not a major portion. We primarily rely on our primary contract with customers. Okay, perfect. And just one last final question. I'm sorry, you were continuing? Sure, please continue. Perfect. And my last question, and I believe this is the same question on everyone else's mind. Since the issuance of the stock, which is at roughly 33 rupees at the beginning of this year, we've seen quite the decline. And of course, a lot of the other stocks did decline as well since the war began, but a lot of them have also recovered. But I was just curious to see, and maybe perhaps we could get some clarity as to why GDL was not able to perform the same recovery, and perhaps you could shine some light on that issue. So that would be all. Let me repeat your question for clarity, and also please confirm about the question. Sir, he's asking right after the IPO, share price declined along with the market, but now market is somehow recovering, but GDL share is still not recovered at par with the market. What is the reason? Is this the same question you have asked, sir? I'm sorry, what was it? Yeah, that is exactly what I'm asking. I'm sorry if I overcomplicated it. Okay, I want to answer this question in Urdu because I hope you understand Urdu, because I do. My Urdu is very terrible. Everyone is asking the same question. Trust me, if you ask me, I still don't know why the share price is going down. कैसे लोन जिसने 33 में खरीदा और वो उसको नीचे कैसे बेच रहा है? अभी कंपनी ने कोई रिजल्ट नहीं दिए, अभी कुछ नहीं हुआ मार्केट में, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान बिल्कुल सही चल रहे हैं, जो कंपनी ने कहा, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी सही चल रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये सारे तो आप लोग मुझे बताएं कि क्यों मैं कुछ शेयर में प्ले नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूं, ना मैं कर सकता हूं, ना मेरी रेगुलेटरी बॉडी अलाउ करती है। ये तो मार्केट डायनामिक्स है कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करता कि मार्केट। हाँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, यस, हम उस पर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कंपनी ने हमें ये ग्रोथ कही थी, ये हुई है कि नहीं हुई। आप सिर्फ इमेजिन करें या आप लोग खुद सोचें कि एक आदमी अपना अगर घर का एक कमरा भी बनाए तो क्या 3 महीनों में बना सकता है? तो सोचें कि हमने 3 महीनों में इतने बड़े शेड्स किए, और ये शेड्स कोई छोटी चीज नहीं है, इनमें मल्टीपल चीजें होती हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो इसमें इतनी इंट्रिकेसीज होती हैं कि उसकी ग्रूविंग कैसे करनी है, उनको मैट किस एंगल पे लगाना है, उनके बंकर्स के जिसमें काऊ ने बैठना है उसका इंक्लाइन कैसे होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ कंप्लीटली साइंटिफिक फार्म। तो सारी चीजों को हमने करके लाइन करके इसके मुताबिक है। ये तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्यों मार्केट में शेयर प्राइस
नीचे जा रही है? क्या वजह है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है, जो कंपनी ने कहा ऑलमोस्ट कंपनी Exactly. उसको अचीव कर रही है। हर चीज कंपनी अपने चीज के मुताबिक, कंपनी में कोई चीज खराब नहीं हो रही, कंपनी के डायरेक्टर्स में कोई लड़ाई नहीं है, कंपनी यूनिफॉर्म Exactly. तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है। डिस्पाइट इतने हालात खराब हुए, मार्च के महीने से आप देखें कॉस्ट कहाँ पे चली गई चीजों की, कमोडिटी, कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें इवन जो हमारी एफिशिएंसी हमने कहा उसकी कई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव, मतलब कंपनी सारे अपने टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर रही है। अब शेयर प्राइस क्यों नीचे गई है, ये तो आप शेयर होल्डर से बताएंगे कि ये इसमें कौन प्ले कर रहा है या क्या हो रहा है, या मार्केट डायनामिक्स को मैं कंट्रोल नहीं करता। आज अगर मार्केट डायनामिक्स सारे सही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये शेयर भी चले जाएगा। और आई होप कि इस प्राइस में अगर मैं खरीदना चाहिए शेयर, मैं तो लोगों को ये बात कहूंगा, मतलब मुझे तो आउटलुक कंपनी की आगे बहुत अच्छी नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। Right. Yeah, and again, I'm just as confused as you are, because as the results you posted, they seem very impressive and of course, very promising. And so I just wanted to get some clarity, and I guess we'll hope and see for the best, inshallah. But that concludes all my questions on my end, and I do want to congratulate you, of course, and wish you the very best for the rest of the year. थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, मुझे बताया गया कि मैंने एडवाइस नहीं करना कि शेयर, लेकिन मैं कंपनी का आउटलुक आपको बता सकता हूं कि कंपनी No बेहतर worries. हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काउ प्रेग्नेंट हीवर्स आ गई हैं, इंशाल्लाह नेचुरल प्रोसेस है, उन्होंने आगे मिल्किंग स्टार्ट करनी है और सारे। और आप प्लीज सारे लोग दुआ भी करें हमारे लिए कि अगर हम जिस नीयत से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम इसको लेके आगे इसी तरह ही चलें। थैंक यू। Best of luck. Thank you. Thank you, Zohaib. Moving on to some questions from the chat box. Hamza Hassan asked about ACE का, this is something we've covered. इसके अलावा उन्होंने IS 41 पे पूछा है जी, तौहीद साहब, if you can answer this कि IS 41 के तहत जो गेन आप बुक करते हैं, इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करें? ओके, किसी भी डेयरी फार्म को अगर उसकी परफॉर्मेंस को हमने जज करना है, तो अगर तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं, देन प्योर हम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स और इसी को लेके चलते हैं। बट द स्टैंडर्ड इज देयर और दैट इज देयर ड्यू टू अ रीजन। सो IS 41 प्ले इट्स रोल, और गेन्स का कुछ पोर्शन जो है वो ऑब्वियसली IS 41 से आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। अज्यूम करते हैं कि IS 41 अप्लाई नहीं होता, वो है लिस्टेड कंपनी, सो हमने IS 16 अप्लाई करना। 16 स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो फीड कॉस्ट हम एनिमल को खिला रहे हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने ऑलरेडी कि 68% ऑफ द रेवेन्यू इज द फीड कॉस्ट विच इज अ मेजर इंग्रेडिएंट। अगर आप में से काफी लोग ऑब्वियसली अकाउंटेंट्स या इस बैकग्राउंड से होंगे, समझते होंगे, अगर मैं 68% ऑफ कॉस्ट को यहाँ से P&L से निकालूं और निकाल के बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करूं, बिकॉज ये एनिमल हमारा जो है किस तरह ग्रो कर रहा है, ग्रो ये कर रहा है फीड खा रहा है, उससे ग्रो कर रहा है। इवन अगर फीड खिलाने में थोड़ा सा भी एफिशिएंसी में फर्क हो, फीड की फॉर्मुलेशन का अगर कोई इम्पैक्ट आता है, कोई इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी आता है उसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। सो प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल है दैट इज फीड। सो अगर हम IS 16 की बात करें, तो अगर उस स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाए तो ऑल फीड कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, बिकॉज जो बायोलॉजिकल एसेट बैलेंस शीट में है वो ग्रो कर रहा है, एवरी डे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो मिल्किंग में जा रहा है, वो कार्विंग दे रहा है, बल्कि फर्दर और भी एसेट जनरेट कर रहा है वो। सो कैश की बजाय वो एसेट्स भी दे रहा है। तो IS 16 की अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 400 to 500% इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट एप्लीकेशन इज नॉट रेलेवेंट हेयर। यही प्रॉब्लम आती है तो स्टैंडर्ड बनते हैं, वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स CFAs अपने कमेंट्स देते हैं, और उसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड आता है। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देयर आर 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी डेयरी फार्म हो गया, एग्रीकल्चरल बिजनेसेस हो गए, इनको 2 पैरामीटर्स के ऊपर देखते हैं। तो एज पर स्टैंडर्ड, वन रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, सेकंड इज जो एनिमल ग्रो कर रहा है दैट इज द सेकंड रेवेन्यू। बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, 100% फीड कॉस्ट जो कि कैपिटलाइज होनी चाहिए थी एज पर IS 16, वो हम एक्सपेंस आउट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर।
अब एसेट कैसे ग्रो करेगा? एसेट ग्रो करेगा अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पे। स्टैंडर्ड कहता है फेयर मार्केट वैल्यू इक्विवेलेंट टू कैश है। अगर इन एसेट को आज हम सेल करते हैं तो इतने के बिकेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश। बैलेंस शीट में आपका एनिमल उतने से इंक्रीज कर गया, लेट्स से 400 मिलियन से इंक्रीज कर गया, बट दैट इंक्रीज शुड बी बैलेंस्ड विद द इनकम। इनकम साइड पे स्टैंडर्ड कहता है कि इसको आप मेन रेवेन्यू में शो करेंगे और दिस इज इक्विवेलेंट टू द कैश। दैट इज वाई टैक्सेशन के रूल्स भी इस पे अप्लाई होते हैं। सो योर क्वेश्चन इज राइट, इस गेन पे इसका इम्पैक्ट है, बट दिस इज इक्वल टू कैश। हम आज अपने हर्ड को लिक्विडेट करें, वी कैन जनरेट इनकम फ्रॉम दिस। if this is equivalent to cash, then this is included in the net profit as well. So this is a complicated full day discussion. I have tried to brief it in few minutes. Still, if you have any questions regarding the standard, you can contact me separately. My number is available in my company's website as well as prospectus. We can have a detailed discussion on this as well. और Thank जो you. अकाउंटेंट्स हैं, आई होप उनको तो ये ऑलरेडी समझ आ गई होगी। थैंक यू। Thank you, sir, for the detailed explanation. Tuba Khalid का एक सवाल है यहाँ पे, company sales are B2B. Why the informal sector is the challenge then? Also, please explain why fair value of milk is part of revenue and why is it such a huge chunk of revenue? सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी आंसर्ड कि व्हाई फेयर वैल्यू इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, मैं आंसर कर दिया। फर्स्ट वन, सर शुड आई आंसर? ओके प्लीज। इनफॉर्मल सेक्टर का इसलिए हमें चैलेंज होता है कि उनके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता। तो जब कंपनी B2B होती है, ऑपरेट तो सारे उसी मार्केट में कर रहे हैं, तो जब जो अगर वो वहां से जाके सस्ता कर ले, तो जब B2B की सेल्स गिरेंगी तो ओवरऑल फिर हमें भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि मुल्क में अभी डिमांड इतनी ज्यादा है दूध की, तो जिसकी वजह से इफेक्ट कम आता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाए, तो फिर आपको ग्रोथ एलिमेंट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, फिर जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स अ नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड थिंग, नथिंग एल्स, सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। Thank you. Yes, you have, sir. हमजा हसन के कुछ सवाल पहले भी हुए थे। एक सवाल मेरा ख्याल है शायद ये रहे कि एवरेज एज ऑफ काउज एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और लाइफ साइकिल क्या है काउ? काउ लाइफ साइकिल मतलब काव के पैदा होने से 13 मंथ्स और वो प्रोसेस। नॉर्मली काउ का लाइफ साइकिल ऐसे होता है कि 11 to 13 मंथ्स हम इनको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं। जब से काउ पैदा होती है 11 to 13 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड देयर साइज एंड देयर वेट, तो हमारी होती है कि 13 मंथ्स तक हम इनको प्रेग्नेंट कर लें आइडियल सिनेरियो में, और होपफुली नॉर्मली कर भी लेते हैं। और प्लस वहां से 9 मंथ्स लगते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी जब तक वो काव करती हैं। तो ये 22 मंथ्स का प्रोसेस होता है, 22 से 24 मंथ्स का ये प्रोसेस होता है, जिसमें उसका बेबी आ जाता है और काउ स्टार्ट मिल्किंग। और जो प्रेग्नेंट हीफर्स हम ऑस्ट्रेलिया से लाए हुए हैं, दे आर प्रेग्नेंट फ्रॉम 2 to 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। जब बिलाल साहब का एक सवाल है जी डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस पे, आई डोंट थिंक कि आप उस पर कमेंट कर सकेंगे एट दिस पॉइंट। जी बिल्कुल, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा डिविडेंड। और अभी हमारा जैसे बताया फोकस है ग्रोथ पे, हर कंपनी का है। अभी तो हमारे IPO फंड आए, अभी तो हम ग्रोथ दिखाना चाह रहे हैं कि हम ग्रोथ करके अचीव करें कुछ। तो डिविडेंड का इंशाल्लाह जैसे जैसे मैनेजमेंट देखती रहेगी, इसको हम इंशाल्लाह वैसे देख लेंगे। थैंक यू फॉर द गाइडेंस सर। आई हैव अ क्वेश्चन है, वजाद साहब पूछना चाहते हैं आपसे। मैं वजाद आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए। Assalamu alaikum. I have two questions. The first one is कि wanted to know कि जब ये IPO हो रहा था तो उस वक्त आप लोगों ने बताया था कि average yield of your cows, milk producing cows is 35 to 36. तो in the last quarter ये yield क्या रही है? And in the last month भी बता दें, मतलब recently, क्योंकि हमारा seasonal shift आ रहा है, we are moving into summers. आपको भी फील हो रहा होगा आजकल, जरा कराची में भी हम बैठे हैं तो यहाँ तो ठीक ठाक गर्मी एंड हीट स्ट्रोक एंड ऑल। सो एज वी मूव टुवर्ड्स समर्स एंड द वेदर चेंजेस, और तो यील्ड गिर रही होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक आउटलुक भी देना है आगे के महीनों का, और करंट रन रेट क्या चल रहा है और पिछले क्वार्टर का जिसका रिजल्ट दिया है उसका भी बता दिएगा।
तो जी एक दिस इज एज माय वी फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं कर लूं या आप पहले जी पहले जी वाले प्लीज से आप? प्लीज कर लें, प्लीज जी, कर लें। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या देख सकते हैं कि गिवन जो आपके पास लैंड है, रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस है, विद दैट व्हाट डू यू सी के आप जो है वो आपका जो हर्ट साइज है वो आपने अपने जहन में क्या कैप रखा हुआ है कि दिस इज जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से क्या कैप होगा हमारे हर्ट साइज का, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी मैनेजेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर यू। ये मेरे दो सवाल हैं, आप दोनों के ऊपर आप रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। थैंक यू। जी फर्स्ट क्वेश्चन जी, बिल्कुल हमने 35 to 36 अपने हमने प्री आईपीओ कहा था। और हमने नेक्स्ट ईयर से कहा था, इस ईयर से नहीं कहा था, क्योंकि जब आती हैं काउस जो ऑस्ट्रेलिया से तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हमारा क्वार्टर गुजरा है इसमें हमारा 35 अचीव हुआ है। लेकिन ओवरऑल जब आप पूरे साल का देखेंगे तो वो हमारा 34.14 हमने अचीव किया है, जबकि हमने अपनी जो प्रोजेक्शन दी हुई है वो 34 की दी हुई है। तो हमने 34.14 किया है जी। इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल के नेक्स्ट ईयर से हम 35 अचीव करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सेकंड क्वेश्चन आपका कि हमारा कैप, टू बी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल व्यू तो कुछ कैप पे हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन बोर्ड का है कि बोर्ड बताएगा कि हमने कहाँ पे कैप करना है, इसको कैसे हम इजीली इसको 10,000 तक लेके जा सकते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली इसको 10,000 तक लेके जा सकते हैं। हमारे पास अबंडेंस ऑफ लैंड है, साइड में भी लैंड अवेलेबल है, चीजें भी हैं। और डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान में अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान में मरीम नवाज ने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि 1 मिलियन एनिमल्स एक्सपोर्ट करने का प्लान है। ऑल दो वी आर डेयरी सेक्टर, पर हमारे लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि जो हमारा कल एनिमल, अगर मिसाल दे रहा हूँ, आज 10 रुपए का बिक रहा है तो नेचुरली 12, 13, 14 रुपए का बिकने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा हमारे लिए कि पाकिस्तान से एनिमल्स एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि नेचुरली किसी भी डेयरी बिजनेस या फैटनिंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो जो मेरा जो पहला सवाल था उसको आपने वैसे तो लार्जली यू हैव आंसर्ड इट, बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग के क्योंकि आपके फार्म्स के ऊपर जरा वो आपने RFIDs वगैरह लगाई हुई है, डेटा कलेक्ट हो रहा होता है रियल टाइम। तो आई वांट यू टू टेल अस कि पिछले 2-3 दिन 4 दिन मतलब इतने शॉर्ट टर्म के अंदर एवरेज डेली प्रोडक्शन क्या हो रही है, अभी उसका जी कुछ नंबर एज बता ऑफ वी सकते हैं? स्पीक नाउ, मुझे एवरेज का मैसेज आया है, जरूर इसी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में आया है। और इस टाइम आप प्लीज देखें और वो बताएं हम। 36.44। चाह रहे हैं वो तो मेंटेन हो रहा है यानी कि, एंड गोइंग जी फॉरवर्ड यानी कि एज वी गो इनटू द समर सीजन समर में डू नेचुरली यू डिक्रीज होता एक्सपेक्ट है कि मेंटेन इसमें। हो जाएगा? समर में नेचुरली डिक्रीज होता है, गाय स्ट्रेस में आती है, चीजें होती हैं, इसका खाली समर से डिपेंड नहीं करता, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एवरेज डेज इन मिल्क, जिस तरह गाय वापस अपने ड्राई पीरियड की तरफ जा रही होती है वो ड्राई ऑफ हो रही होती है। अगर शायद आप हमारी स्लाइड्स देखें तो इसका ग्राफ साइन वेव की तरह होता है, स्टार्ट कम, फिर पीक और फिर कम। तो एवरेज डेज इन मिल्क आपका बहुत डिपेंड करता है कि फार्म का इस टाइम कहाँ खड़ा है, तो उसके पे भी वो जो एवरेज मिल्क है उस पर भी डिपेंड काफी कर रहा होता है। और यस समर आर चैलेंजिंग। दुआ है हमारी कि इंशाल्लाह हमारे अच्छे गुजरे हैं। मीटिंग्स हमने स्टार्ट कर इंशाल्लाह। दी हैं, प्रोजेक्ट वालों से SOPs मंगवा लिए हैं कि इस समर में जो पिछले समर में चैलेंजेस आए, लेकिन हर दफा समर एक न्यू चैलेंज होता है। मतलब इंसान थैंक कहता है यू। कि मैंने पिछली दफा ये सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं तो इस दफा कोई नया आएगा चैलेंज। थैंक यू जी। मेरे कॉलीग साथ में एक बैठे हैं, उनका एक सवाल है, प्लीज वो सवाल भी ले लें। अच्छा, जी हम ये प्लीज। देख रहे थे 9 मंथ्स के अंदर ना आपने डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ लाइफ स्टॉक कोई 91 मिलियन का दिखाया हुआ है इन योर बायोलॉजिकल एसेट्स। तो जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज लिखी है कि जो आपको जो है लॉस ऑन सेल हुआ है वो तकरीबन 27 मिलियन का हुआ है। लेकिन आगे जी इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव सोल्ड ओनली काव्स एंड हाइफर्स ना। तो क्या आपने जो है मिच्योर कैटल की कलिंग नहीं की, सिर्फ की आपने है। कहा तो? अगर अगर वो लिखा, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लिखा हुआ अगर वो है। नहीं, इसमें मेजॉरिटी मेच्योर काफ्स की कलिंग है, हर महीने कलिंग होती है। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, जो कलिंग है इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। नहीं, तो इसमें काव्स और हाइफर्स ही लिखा हुआ है, मतलब इसमें क्या फिर मिच्योर कैटल की नहीं कर रहे आप?
हेफर्स हम मेच्योर का तो हेफर से कहते हैं ना। जी नहीं, आपकी आपने हाइफर्स तो बिल्कुल ये सही है ना पॉइंट। कि नहीं नहीं ठीक है, यू आर 100% राइट, हमने ये गलत लिखा हुआ है इसमें, काज हेफर एंड स्लैश काउज होना चाहिए। यू आर 100% राइट। उसमें क्या मेजोरिटी जो है ये मैं तो ये अज्यूम कर इसमें रहा हूँ मेजोरिटी शुड बी मेच्योर। जी मेजोरिटी इसमें मेच्योर काउस है, काफ में लॉस नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि हम मेल काफ को डे ओल्ड को बेच देते हैं, मतलब 3 डेज 4 डेज को, उसमें लॉस नहीं होता हमें। लेकिन यस, जो मेच्योर काउस है इसमें ये हमारे एंड पे गलती है। ठीक है, एक एवरेज बता सकते हैं कि महीने में या क्वार्टर में कितने आप कल कर रहे होते हैं गिवन योर साइज राइट नाउ? इसमें ऐसे होता है कि हमने ना पूरा ओवरऑल टारगेट दिया हुआ है, जैसे मैंने पूरे साल का टारगेट दिया हुआ है अपना 15 to 17%। उसमें उनके बोनसेस और इंक्रीमेंट्स भी उसमें होते हैं कि अगर उसमें अब वो 15 to 17% में क्या है, मोर्टेलिटी भी है, उसमें कलिंग भी है, उसमें हिफर भी है, वो सारा एक ओवरऑल टारगेट दिया होता है फार्म को कि इतने वाली काउज इससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए, लेकिन ओवरऑल टारगेट तकरीबन 15 से 18% का है। लेकिन हमने जो प्रोजेक्शन में गारबन टारगेट दिया हुआ है, मुझे प्लीज इस पे अकाउंटेबल ना कीजिएगा, क्योंकि अब इंसान हूँ, थोड़ा बहुत भूल भी जाता है। मेरा ख्याल है 20% हमने उसमें टारगेट दिया हुआ कि 20% कलिंग होगी, लेकिन जिस तरह हर्ट बड़ा होता है, वो बूढ़ा होता है, तो ये कलिंग बेहतर होती है, लेकिन उस तरह फिर एफिशिएंसी भी आपकी बेहतर होती जाती है। सही है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आप जो यंग जो बुल्स होते हैं उनको आप 2-3 दिन में जो है बेच देते हैं, तो उनका बेसिकली आप गेन जो है रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे ही वो आते हैं तो आप जो उसको प्रॉफिट में बेच देते हैं, बस उसका थोड़ा बहुत गेन आ जाता है, इसी तरह होता है? जी ऐसे ही जो दूध पीना होता है, उसने जो खर्चा दूध पीने का 2 3 4 5 दिन जो खाया पिया, क्योंकि नॉर्मली बाल का 3 4 दिन लेट भी हो सकते हैं वो, तो जो उसका खर्चा होता है वो माइनस जितने का बिकता है, ये असल में इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। 5,000 7,000 10,000 12,000 13,000 14,000 का बिकता है, ये 15,000 का बिक जाता है कभी। तो इट्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Ji, there was one hand raised from Adarsh. मदद तो नहीं बात की। Adarsh, if you still want to ask, I can unmute you. This is the last question, everybody. Adarsh, आप पूछ लीजिए. Yeah, it seems like we don't have any questions. Chat box पे भी तमाम हमने सवालात देख लिए तकरीबन. बहुत शुक्रिया जी. Thank everybody. Closing remarks, श्वेत साहब आप देना चाहें. बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इसमें फोकस रहने की तौफीक फरमाए। एक मैं बात पब्लिक को जरूर बताना चाहता हूँ, उनके पैसे हमारे पास अमानत हैं, और जैसे हम पहले चला रहे थे, एटलीस्ट हम बोर्ड और सारे एम्प्लॉयज ये कोशिश करें कि हम पहले से बेहतर। रोज मैं अपने एम्प्लॉयज को ये कहता हूँ, यार इसमें पब्लिक का पैसा है, कल को मैं मॉरली एथिकली भी और अल्लाह के यहाँ भी इसका देनदार हूँ, तो इसको प्लीज ख्याल करो कि अगर कोई चीज हो तो इसमें कोई कसर हम ना छोड़े। हमारी मतलब स्टेक पे हर चीज, तो हम कोशिश कर रहे हैं दिन रात के, और पब्लिक से भी हमारी ये अपील है कि वो दुआ भी करें, और अगर कोई उनके पास अच्छे इसमें एडवाइसेस भी हैं तो हमें वो भी करें, वी आर ओपन फॉर दैट। और इंशाल्लाह उनको ये एक मैसेज, एक कंफर्ट जोन देना चाहता हूँ, दे आर इन सेफ हैंड्स, और इंशाल्लाह जो कंपनी ने कमिट किया, कंपनी इज ऑन द वे इंशाल्लाह उसको अचीव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ji. बहुत शुक्रिया. Thank you to everybody who attended. Thank you, Sheikh Saab. Thank you, Toy Saab, Ahad, the company secretary, manager finance, and everybody else. Again, my name is Bukar Kini, signing out. बहुत शुक्रिया.